Let's get started. So we'll have some couple of pattern programs today. तो पहले आपको पता होगा for loop कैसे चलता है. Can anyone tell me how does for loop work? So why do we use for loop? For loop का use करके मतलब क्या अचीव करते हैं? Why do we need for loop? So we use for loop to execute some piece of code again and again. So we use for loop to execute some piece of code again and again. So I want to execute this code, let's say 10 times or 15 times, any number of times. You know the number of iterations in advance, then we go with the for loop. The for loop आप ऐसे लिखते हो. Inside that we have two things. Three things separated by semicolon. यहाँ पर first part होता है आपका initialization. What is the first part? Initialization. Second part is condition, and third part is increment, decrement. तो आप इनिशियलाइजेशन में आप वेरिएबल्स इनिशियलाइज करते हो, मतलब वेरिएबल का फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करते हो. यू असाइन सम वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम. कंडीशन, यहाँ पर आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, जावा का वैलिड स्टेटमेंट, प्रिंटलन स्टेटमेंट लिख सकते हो, या आप यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हो. लेट्स से इंट आई इक्वल टू 1 और आई इक्वल टू 10, एनी वैल्यू यू कैन राइट. उसके बाद फिर कंडीशन, आपके पास चार ऑप्शन. फोर ऑप्शंस वी हैव. कंडीशन में आप डायरेक्ट लिख सकते हो ट्रू फॉल्स. यू कैन राइट ट्रू, डायरेक्ट ट्रू फॉल्स, राइट. आप यहाँ पर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो. यू कैन राइट द एक्सप्रेशन आल्सो. तो एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ टाइप बूलियन. लेट्स से 4 greater than 6, इसका आउटपुट होता है फॉल्स. तो ऐसा आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो. थर्ड, यू कैन राइट अ वेरिएबल आल्सो. कैन राइट अ वेरिएबल आल्सो. नाउ दैट वेरिएबल मस्ट बी ऑफ टाइप boolean. That variable must be of type boolean. Then you can write a function call also. Function call or a method call, right, जिसका आउटपुट क्या होना चाहिए? boolean, true false. अब ये कैसे काम करता है? और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आप क्या करते हो? जो भी वेरिएबल था उसका वैल्यू आप इंक्रीमेंट करते हो, जैसे आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस. आप ऐसे भी लिख सकते हो आई इक्वल टू आई माइनस 10, ऐसे भी लिख सकते हो. यू कैन राइट दिस ऑल्सो. So how the control flows? First, control will come to initialization. From initialization, control will go to the condition. If the condition is true, control will go inside the body. If the condition is false, that will be end of your for loop. Then from condition, it will come inside the body, and from the body, it will go to the increment decrement. यहाँ पर आपका वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा. Then control will go to the condition. Condition again, it will be, if it is true, it will go inside the body. Else, the value is false, then it will be end of your program, right? This is how it for loop works. Now I want to print, first of all, let's try printing. I want to print, let's say 4 stars. I want to print 4 stars. So what is the first option? You can write a println statement and you can write the 4 stars. That is one option. Now I want to print like this 40,000 stars. I want to print 40,000 stars. So what will happen? So how are you going to print 40 stars? Are you going to write stars like this 40,000 times? पहला ऑप्शन तो है, आप लिख सकते हो, लेकिन इतना लिखने में क्या होगा? कोड का लेंथ बहुत बड़ा हो गया. लेंथ ऑफ द कोड विल इंक्रीज एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट. बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. तो आप सेम चीज़ एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हो. आई विल राइट एसओपी ऑफ स्टार. यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं लिख रहा है, बस एसओपी ऑफ प्रिंट. और ये सेम चीज आपको क्या करना है? यू वांट टू प्रिंट स्टार हाउ मेनी टाइम्स? 40,000 टाइम्स. तो आप इसे कर्ली ब्रेसेस में लिखो. देन यू राइट द फॉर लूप. अभी फॉर लूप ऐसा लिखो
कि जो 40,000 टाइम्स लिखे, 40,000 टाइम्स चले। आप इसको कोई भी वैल्यू से देख सकते हो, इंट आई इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40,000 एंड आई प्लस प्लस। So a variable is initialized. Condition is this will be true. How many times this condition will be true? 40,000 times. This will be incremented almost 40,000. Right? So this loop will continue how many times? 40,000 times. 40k times. सेम चीज आप इसको भी कर सकते हो। तो ये पैटर्न, पहला वाला पैटर्न बहुत सिंपल है, ऐसे वाले। सेम पैटर्न आप क्या कर सकते हो, ऐसा वाला 40,000, तो प्रिंट एलन लिखो, सेम लॉजिक रहेगा, बस प्रिंट एलन लिखना। थर्ड, अब मुझे क्या करना है, ये वाला पैटर्न प्रिंट, और ये कहाँ तक भी जा सकता है, कैन गो एट एनी लेवल, दिस कैन गो एट एनी लेवल। कैसे प्रिंट करोगे, आपके पास 5 ऑप्शन, मतलब आप, एक तो है कि 5 लाइन प्रिंट करो एसओपी अप एसओपी अप, लेकिन ऐसे 10,000 लाइन्स होगी तो आप नहीं लिखोगे, विल नॉट राइट। तो पहले तो मुझे बताओ कितनी सारी लाइन्स है अभी के लिए, 5 लाइन्स है, राइट? many lines we have and how many columns we have? We have 5. So right now you see here, this is your row number 1, your row number 1, row number 2, row number 3, row number 4 and row number 5। ये कहाँ तक भी जा सकते हैं। and columns 1 2 3 4 5। now 5 rows and 5 columns, these are called as columns, these are row 1 2 3। अब मुझे बताओ रो 1 में कितनी वैल्यूज प्रिंट करनी है आपको, 1, रो 2 में 2 वैल्यूज, रो 3 में 3 वैल्यू, रो 4 में 4 वैल्यूज, रो 5 में 5 वैल्यूज, ऐसे रो 50,000 में कितनी वैल्यूज प्रिंट करनी पड़ेगी आपको, 50,000। लेट्स कंटिन्यू टिल आपके पास रो है 50,000, रो नंबर 50,000, और इसमें कितनी वैल्यूज प्रिंट करनी है आपको, 50,000। तो आई वॉन्ट टू प्रिंट, आई वॉन्ट टू प्रिंट, आई वॉन्ट टू प्रिंट कितने सारे स्टार्स, 40,000 और 50,000। आप कैसे प्रिंट करोगे, और यू गोइंग टू प्रिंट द स्टार्स, पहला पैटर्न क्या था हमारा, स्टार्स प्रिंट करना, स्टार्स प्रिंट, ये कहाँ तक भी जा सकता है, 10,000 5,000, नहीं थे। अब क्या करोगे, व्हाट इज द कोड यू वांट टू प्रिंट, आई डू नॉट वांट टू प्रिंट लाइन, आई वांट टू जस्ट प्रिंट द स्टार एंड स्पेस। कितने टाइम करना है आपको, 40,000 टाइम्स, ये एनी नंबर ऑफ टाइम्स। so you let int I इक्वल टू 1, I शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। अब ये 10 कितने टाइम चलेगा, ये 10 टाइम। this will run almost 10 times, राइट? अब मुझे सेम क्या करना है, हर एक लाइन पे नया स्टार प्रिंट करना है, क्या करना है, हर एक लाइन पर नया स्टार प्रिंट करना है। सेम कोड आपको क्या करना है, हर एक लाइन पर एक स्टार प्रिंट करना है। ऐसे कब तक करना है, कंटिन्यू। तो बस यहाँ पर आप क्या करो, प्रिंट एलन, स्पेस नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए, प्रिंट। एक हर एक न्यू लाइन पे हो गया, ऑन एवरी न्यू लाइन। नाउ कैन यू प्रिंट 50,000 और लेट्स से n नंबर ऑफ टाइम, मेरा n कितना भी हो सकता है, और लेट्स से इंट रो,
इक्वल टू 1 या 10। तो मुझे ऑलमोस्ट रो इक्वल टू 10 मतलब ये 10 को मैं ऐसे रिप्लेस कर रहा हूँ। तो हाउ मेनी टाइम्स दिस विल रन इन रो इक्वल टू 10? तो हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल रन? 10 times. Perfect. Will run 10 times. Will run 10 times. Running 10 times. Now, what I would do, I'm creating a for loop, and I equal to 1, I is less than. Now this loop is also going to run how many times? How many times it is going to run? 10 times. How many times this loop is running? 10 times. I'm writing a loop inside a loop. I will just give an, this is going to be rows, going to be rows. Once again, I will write a for loop. Row should be less than or equal to number of rows. What it will print? It will print many value. How many times this loop will run? 1 to 10, 10 times. So it is printing 1 to. Instead of that, I want to print. Now अभी मुझे एक लाइन पर कितनी वैल्यूज प्रिंट कर रहे हो आप? एक लाइन पर एक ही वैल्यू प्रिंट कर रहे हो. तो आई वॉन्ट मल्टीपल वैल्यूज टू बी प्रिंटेड. आई वॉन्ट मल्टीपल वैल्यूज टू बी प्रिंटेड. तो एक ऑप्शन है कि आप इतने सारे स्टार्स लिख सकते हो. तो क्या होगा? हर एक लाइन पर इतने सारे स्टार्स होंगे. नाउ आई वांट टू प्रिंट एक लाइन में 1 लाख स्टार्स. हर एक लाइन पे 1 लाख स्टार्स. अभी क्या कर रहे हो आप? अराउंड 10-20 स्टार्स प्रिंट कर रहे हो, मैन्युअली कर रहे हो. ऐसे मुझे 50,000 स्टार्स प्रिंट करना है एक लाइन में. क्या करोगे? देखो ऐसे कब तक चलेगा? लेट्स से ऐसे 10 वैल्यूज है मेरे पास, लेट्स से 5 है, ठीक है 5. ऐसे कितने वैल्यूज है? 3 3 6 7. तो 7 रोज एंड 7 स्टार्स. 1 2 3 4 5 7. कितनी वैल्यूज है? 7. तो 7 रोज और 7. ऑप्शन क्या आपके पास? पहला ऑप्शन ये प्रिंट करो. इससे आपको एग्जैक्टली सेम आउटपुट मिलेगा. गेट द सेम आउटपुट. विल गेट द सेम आउटपुट. अब मुझे बताओ, यहाँ पर 70,000 लाइन्स प्रिंट करना है मुझे. कितने? 70,000. और 70,000 स्टार्स प्रिंट करना है. आप मैन्युअली लिखोगे कि ये स्टार्स 70,000 ऐसे? क्या करोगे आप? क्या करोगे? अभी ये काम आपको स्टार प्रिंट करना है, राइट? कितने स्टार प्रिंट करना है? 70,000. Now you want to repeat this how many times? 70,000 times. So what you will do? You will write a for loop. You will write a for loop. कितनी बार चलना चाहिए? कितनी बार स्टार प्रिंट करना है आपको? Column equal to 1 and column should be less than or equal to number of rows लेते हैं. Number of rows और row number से 7 लिखते हैं. For now just think of 7 से not that much. Column plus simple. और हर एक रो प्रिंट करने के बाद, एक रो में सारी स्टार्स प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है? न्यू लाइन लेके आना है. तो यू वांट टू टेक द न्यू लाइन. तो मैंने क्या कर दिया? ये स्टार्स प्रिंट करने के बाद मैंने क्या किया? प्रिंट एलन. फिर आपका ये. नाउ दिस थिंग व्हाट इट डज? so this thing inside a for loop, it will print 7 stars, and after that printing 7 stars it will give a new line, and then again this process. How many times this process will run? जो मैंने हाईलाइट किया कितने बार चलेगा ये? 7 times. So this thing will happen 7 times. So 7 times what it is going to do?
7 times it is going to print 7 stars and a line. 7 times, 7 times it will print 7 stars, new line, then again 7 stars, new line. How many times this will happen? 7 times. So 7 times you are going to print 7 stars and a easy. Now you can do the same thing. आपको नंबर बढ़ाना है, आप बढ़ा सकते हो नंबर. You will say, let's say 70,000 lines और 70,000 columns. पता नहीं है प्रिंट कर पाएगा नहीं. कितने बार चलेगा पता है? कितने बार कितने स्टार्स प्रिंट होंगे? 70,000 इंटू 70,000 कितने हो गए? 10 जीरो है, 10 जीरो, 10 जीरो है, 10 जीरो, 10 नहीं 4, 49 और उसके ऊपर 4, 4 और 4 कितने हो गए? सुनने पड़े हो. 7 7 49 हो गया, राइट. 49 हो गया. ऊपर के ये 4 और ये 4 जीरो उधर लेके जाओ बस. कितने हो गए? 8 जीरो. 49 पर 8 जीरो कितने हो गए? करो कैलकुलेट. चलो इसको बहुत टाइम लगेगा, ये चलता रहेगा ये टेस्ट. यू गॉट द आइडिया राइट? के लिए सिंपल 70/70 कर सकते हो. ये जल्दी हो जाएगा. हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? 70 लाइन्स एंड 70. ठीक है. नाउ व्हाट आई वांट अ नेक्स्ट थिंग. I want 1 star, star, 3 star, 4 star and 5 star. कितने रोज चाहिए आपको? 5 rows. For now just take 5 rows. And how many columns? Now you tell me, are you printing the same number of stars on every line? Are you printing the same number of stars every line? तो हर एक लाइन में कितने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए? कॉलम की लेंथ नहीं, रो लेंथ. तो दिस इज रो, मतलब रो नंबर 1 है तो 1 स्टार. रो का वैल्यू प्लस प्लस होगा. रो 1 प्लस प्लस 1 2 3 4 5. कितने टाइम चलेगा लूप? 5 टाइम्स. रो का वैल्यू 1 था, इट विल बिकम 2 3 4 5, राइट. तो इक्वल टू रो नंबर लिख सकते हैं हम. कितने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए? इक्वल टू रो नंबर. रो नंबर अगर 1 है तो 1 स्टार. रो नंबर अगर 2 है तो 2 स्टार. रो नंबर 3 है तो 3 स्टार. रो नंबर 4 है तो 4 स्टार. आप इसे और भी लेंथ तक लेके जा सकते हैं. इसे 50/50 करना है आपको. इसे भी ट्राई कर सकते हैं. 50 रोज. हाउ मेनी रोज विल बी देयर? 50 रोज. सिंपल. नाउ आई वांट टू प्रिंट 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 एंड 5. स्टार नहीं प्रिंट करना आपको. क्या प्रिंट करना है? नंबर. 5 रो लेंगे. तो विल बी 5 रोज.
एंड ईच रो यू हैव टू प्रिंट 1 2 2 3 3 5 है। अभी आप मुझे बताओ हर एक रो में क्या वैल्यू प्रिंट कर रहे हो आप? 1, मतलब हर एक वैल्यू रो में नंबर ऑफ वैल्यूज आर गोइंग टू चेंज, कितने वैल्यूज प्रिंट कर रहे हो आप वो तो चल जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? पेज प्रिंट करो पहले तो, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप? रो नंबर 1 है तो 1 वैल्यू प्रिंट होगा, रो नंबर 2 है तो 2 2 प्रिंट होगा, कितने टाइम? 2 बार। रो नंबर 3 है तो 3 प्रिंट होगा 3 टाइम्स। So this loop will run first time once, twice, thrice, four time, 5 times, और हर एक इटरेशन में सेम रो प्रिंट होगा। तो इट विल प्रिंट 1, उसके बाद 2 बार लूप रन होगा, 2 वैल्यूज प्रिंट होगा। सी दिस केयरफुली। दो फॉर लूप क्यों लिया? एक फॉर लूप लिया मैंने एक रो से दूसरे रो लाइन, इज 1 2 3 4 5, so this loop will run 5 times and each row we are printing variable number of values। तो ये एक बार चलेगा फर्स्ट टाइम, second time it will run for 2 times, third time it will run for 3 times and so on। now I want to print 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5। हाँ, नंबर ही प्रिंट करना है, फिर वहां पे उन्होंने बोला है यहाँ पर कि ऐसा ऐसा पैटर्न है, क्या क्या? चलो मैं पूरा स्प्रेड से बता दो। चलो कितने रोज प्रिंट करना है आपको? कितने भी हो सकते हैं राइट, 50,000 भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ रोज आप कितने चाहिए लिख सकते हो, 50,000। तो आप 4 5 प्रिंट स्टेटमेंट तो नहीं लिख सकते आप, बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे, इसे प्रिंट करोगे आप 1 2, ऐसे भी कर सकते हैं बहुत सारी पब्लिक राइट, कर सकती है पब्लिक, ऐसे कर सकती है, लेकिन कब तक करेगी ऐसे? कितने टाइम करोगे आप ये? लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन अगर मुझे 50,000 लाइन्स है तो आप कर पाओगे ये? आपको ये तो समझ में आया कि मैं ये कंटिन्यूस नहीं कर सकता, तो क्या करना पड़ेगा? वॉट एवर द टास्क यू आर डूइंग दैट आई नीड टू डू। कितने सारी लाइन चाहिए आपको? हाउ मेनी लाइन्स यू वांट? कितनी सारी? तो ये लूप कितने बार चलना चाहिए? इट कैन रन फॉर 5 टाइम्स। 5 लाइनें प्रिंट करना है आपको, ये तो समझ में आया राइट। चलो उसके लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल इंट रो इक्वल टू 1 एंड रो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। अभी 5 लिया, 50,000 भी हो सकता है। रो नाउ आप डायरेक्टली आप ये मतलब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज सेम है क्या हर एक लूप में, हर एक रो में? यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, 2 3 4 5, ऐसे मुझे लेट से 50,000 वैल्यूज प्रिंट करना है। आर यू गोइंग टू राइट 50,000? 50,000 आप ऐसे 50,000 टाइम्स लिखोगे, 1 CR टाइम, आर यू गोइंग टू राइट दैट? तो वैल्यूज प्रिंट करना, कितनी वैल्यूज प्रिंट कर रहे हो वहां पर? फर्स्ट लाइन में एक, सेकेंड लाइन में 2, थर्ड रो में 3 वैल्यूज, फोर्थ रो में 4 वैल्यूज, फिफ्थ रो में लाइक आपका नंबर ऑफ वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। तो आप एक चीज देखो, लाइन नंबर 1 पे अभी रो का वैल्यू कैसे होगा, इंक्रीमेंट होगा, रो 1 2 3 4 5 होगा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज आर इक्वल टू नंबर ऑफ रो। क्या बोल रहा हूं मैं? नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल टू हाउ मेनी? अगर रो नंबर 1 है तो 1, ये लूप कितने बार चलेगा? फर्स्ट रो के लिए 1 टाइम, सेकेंड रो के लिए 2 टाइम्स, थर्ड रो के लिए 3 टाइम्स, तो 1। अब अभी यहाँ पर आपको क्या प्रिंट करना है? प्रिंट एल एन, हटा दो इसे, और यहाँ पर प्रिंट क्या करना है? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5। आप यहाँ पर रो तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा?
आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कॉलम। कॉलम क्यों? कॉलम की वैल्यू हर बार चेंज होगी। कॉलम की वैल्यू फर्स्ट रो के टाइम एक ही बार चलेगा, फिर ये 2 बार चलेगा लूप 1 2 2, फिर ये थर्ड रो के लिए 3 बार चलेगा, सो 1 2 3। फोर्थ रो के लिए इट विल रन फॉर 4 टाइम्स, इट विल 1 2 3 4। देन फिफ्थ रो के लिए 5 टाइम्स। एंड आफ्टर प्रिंटिंग द वैल्यूज you should go to the next line. Let me remove this and let's debug this also. ठीक है, रो ये फॉर लूप कितने बार टाइम चलेगा? हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल रन? 5 टाइम्स। एंड ईच इटरेशन ये लूप कितने बार चलेगा? 5 टाइम्स नहीं चलेगा, इक्वल टू रो नंबर। अगर रो नंबर 1 है तो ये कितने बार चलेगा? 3 वंस। तो कंडीशन इज कॉलम शुड बी लेस देन और इक्वल टू रो। कॉलम क्या है? कॉलम इंड कॉलम इक्वल टू 1, इंड कॉलम इक्वल टू 1। सो 1 लेस देन और इक्वल टू रो, रो की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1 ट्रू, तो ये प्रिंट करेगा कॉलम। कॉलम की वैल्यू क्या है? 1, इट इज प्रिंटिंग 1 एंड स्पेस। देन कॉलम की वैल्यू बन गई प्लस प्लस 2 लेस देन 1, 2 लेस देन 1 क्या बनेगा? फॉल्स। और फॉल्स होगा तो क्या करेगा आपका प्रिंट एलन कंट्रोल लेके आएगा इस नेक्स्ट लाइन। देखो आपका कर्सर आ गया नेक्स्ट लाइन। अब ये रो का वैल्यू बना 2, now row plus plus row value is now 2. Now this internal for loop, how many times this will run? Column should be less than or equal to row, row का वैल्यू कितना है 2, और end column फिर से एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, so 1 लेस देन 2 2, प्रिंट करेगा 1। देन कॉलम प्लस प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 2 2, प्रिंट करेगा। एंड कॉलम प्लस प्लस 3 हो गया फॉल्स। देन यू आर टेकिंग कंट्रोल टू द नेक्स्ट लाइन एंड so on. Now this for loop will run, internal for loop will run 3 times. For this time fourth row it will run 4 times. अब ये for loop चलेगा 5 times, 1 2 3 4 5 and that is end. Because column का वैल्यू बन गया 6, 6 less than or equal to 5 false, that is end of your internal for loop. It will take you to the, that's the end of your program. Simple. Now I want to print क्या करोगे? नंबर ऑफ रोज आर सेम, नंबर ऑफ कॉलम्स आर आल्सो सेम, बस प्रिंट क्या करना है ये लॉजिक आपको लिखना है। नंबर ऑफ रोज आर सेम, नंबर ऑफ कॉलम्स आर आल्सो सेम, बस आपको प्रिंट क्या करना है वो चेक करना है आपको। क्या करोगे आप? बहुत सिंपल है। अगर आपका रो अगर आपका रो इवन ऑड है तो आपको 1 प्रिंट करना है। इफ रो मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, आपको प्रिंट क्या करना है? चलो रो मॉड इक्वल टू 0, देन आपको प्रिंट करना क्या है? क्या प्रिंट करना है आपको? 0। एल्स आपको प्रिंट क्या करना है? 1। समझ रहे हो? ठीक है, अगर रो नंबर आपका इवन है तो 0 प्रिंट करो। अगर आपका रो इवन है तो 0 और ऑड है तो टेक दिस ट्राइंग फॉर 50 टाइम्स। बस यही प्रिंट करने का लॉजिक।
यहाँ पर मैंने कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया, हैव यूज्ड कंडीशनल। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट दिस कंडीशन इज फॉल्स, प्रिंट दिस। ठीक, नाउ आई वांट टू प्रिंट I want to print star. वन स्टार, टू स्टार, थ्री स्टार, फोर स्टार, फाइव स्टार। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कितने रोज प्रिंट करना है आपको, तो एटलीस्ट लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ रोज शुड बी 5। ठीक, आप उल्टा स्टार्ट कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने प्रिंट करना है आपको, नंबर ऑफ स्टार्स, स्टार कितने प्रिंट करना है आपको, वन से स्टार्ट करो। हर स्टार कितने होना चाहिए, हर एक रो में सेम है क्या, इट शुड बी इक्वल टू रो। अगर रो नंबर आपका रो नंबर है 1 तो 1 स्टार, अगर रो नंबर है 2 तो 2 स्टार। यहाँ पर प्रिंट करो, आप प्रिंट करो स्टार। ठीक, देन आफ्टर प्रिंटिंग दैट जस्ट गिव अ न्यू लाइन। लेकिन इससे होगा क्या, आप देखो इससे पहले स्टार, उससे पहले क्या है, स्पेसिस। क्या है, स्पेसिस। कितने स्पेसिस है, 4 स्पेसिस, 3 स्पेसिस, 2 स्पेसिस, 1 स्पेस एंड 0 स्पेसिस। तो नंबर ऑफ स्पेसिस आर रिड्यूसिंग। क्या करना है आपको, स्पेसिस, अभी स्पेसिस कितना, 4 3 2 1 0। तो आपका फॉर लूप कैसे चलना चाहिए, स्पेस बोलो आप, स्पेस कितना स्टार्ट करो, रो -1, पहले कितने रहेंगे, 4 3 2 1 0, एंड स्पेस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों चाहिए, 0 चाहिए, 1 चाहिए, ये होगा 4 -3 2 1 like this। Let's do that, just print the space, 4 spaces, 3 spaces, 2 spaces like this। करेक्ट, स्पेसेस आपका इंक्रीज हो रहा है, स्पेसेस आपका इंक्रीज हो रहा है, कैसे करोगे आप, स्पेसेस आपका इंक्रीज, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। इसे कैसे चलाओगे फिर, यहाँ पर फिक्स रो पे लेना पड़ेगा तो 5 माइनस, चल जाएगा, दिस विल वर्क। ये दिस इज नंबर ऑफ रोज, आ गया, लेकिन सब में सेम स्पेसेस आ गए, सेम स्पेसेस चाहिए कि आपको, देन यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका,
ये तो सब में सेम स्पेसेस देगा, इट विल यूज द सेम स्पेसेस, so it should be space should be greater than or equal to like this. स्पेसेस कितना होना चाहिए? 4 3 2 1। क्या माइनस होना चाहिए आपका? स्पेस माइनस बना। आप स्टार्ट कैसे कर रहे हो? ये कितना रहेगा स्टार्टिंग में? 0 क्यों रहेगा? 4 या जो भी नंबर ऑफ स्पेसेस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो लेकिन सब में कॉमन स्पेसेस प्रिंट हो रहा है, सब में कॉमन स्पेसेस प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 - 1, तो स्पेसेस सब में कॉमन। ये कितने कितने बार लूप चलेगा? 4 टाइम्स। सबके लिए 4 टाइम चलेगा, लेकिन सबके लिए 4 टाइम चलना चाहिए क्या? नहीं, तो फिर कितना टाइम चलना चाहिए? फर्स्ट टाइम 4 टाइम्स, सेकेंड टाइम 3 टाइम्स, थर्ड टाइम 2 टाइम्स, एंड देन लाइक दिस। कैसे करोगे फिर? स्पेस स्पेस शुड बी यहाँ पर, इधर, यहाँ पर। हाँ, -1 नहीं। अरे 4 3 2 1 0। स्पेस की वैल्यू कैसे माइनस होनी चाहिए? कितने स्पेसेस चाहिए आपको? 4। 4 कैसे आएंगे? व्हाट इज 4? इट्स ए 50,000 है, 50,000 रोज है, नंबर ऑफ रोज। कितने मेरे टोटल नंबर ऑफ रोज? नंबर ऑफ रोज लेट्स से 50,000 है, 50 है। कितने बार चलना चाहिए आपका? दिस वन, नंबर ऑफ रोज टाइम्स। अब मुझे स्पेसेस प्रिंट करना है। क्या स्पेसेस प्रिंट करना है? कितने टाइम, कितने स्पेसेस प्रिंट करना होगा फर्स्ट टाइम? नंबर ऑफ रोज -1। ये सबके लिए सेम इनिशियल इतना होगा। 50,000 है तो 50 माइनस, तो 49 स्पेसेस आएंगे फर्स्ट टाइम। अब ये कंडीशन क्या रहेगा? शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? तो यहाँ पर मैं अगर 0 1 लिखूँ, यहाँ पर 1 लिखूँ तो क्या होगा? क्या होगा? कितने टाइम चलेगा लूप? देखो सब में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ स्पेसेस आर सेम, नंबर ऑफ स्पेसेस आर सेम। 50 स्पेसेस हो रहा है सब में। मुझे 50 स्पेसेस नहीं चाहिए सबके लिए। यू गॉट द आइडिया? मतलब हो क्या रहा है? आप सारे रो के लिए नंबर ऑफ स्पेसेस सेम दे रहे हो, 50, यहाँ पर भी 50। ये चेंज होना चाहिए, राइट? व्हेन इट विल चेंज? इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर नहीं होगा। नहीं होगा, ये हमेशा वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस। ये तो इन्फिनिट जाएगा आई थिंक। ये स्टार्टिंग में आ रहा है, स्टार्टिंग में स्पेस 0 आ रहा है, ये कभी जाएगा नहीं। ये देखो, ये फॉल्स हो गया। दिस कंडीशन इज ऑलवेज फॉल्स। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका कंडीशन क्या हो रहा है। यहाँ पर आपका, ये देखो नंबर ऑफ स्टार्स कैसे आपने किया, सेम लॉजिक यहाँ पर लिखो आप। अभी बस यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा था, स्टार्स क्या हो रहा था, नंबर ऑफ स्टार्स
इंक्रीमेंट हो रहा था, तो आप इसे ऐसे लिखो ना, क्या लिखो आप, स्पेस बोलो। अभी आपको क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। तब स्टार्ट कहाँ से होगा, लास्ट से। हाँ, जो भी रो होगा, क्या करना है आपको, जो भी रो होगा उल्टा स्टार्ट करें तो क्या होगा, रो विल बी इनिशियली 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ रोज तो आपके पास है ना, यू हैव द नंबर ऑफ रोज। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लिखना है आपको, यहाँ पर स्पेस माइनस माइनस स्पेस, कंडीशन क्या होगा, व्हाट इज द कंडीशन, स्पेस रो माइनस वन, यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्पेस शुड बी सेम चीज, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा, तो ये सबके लिए सेम टाइम चलेगा। दिस इज रॉन्ग, और भी रॉन्ग हो, कोई स्पेस ही नहीं। ये सबके लिए क्या हो रहा है, स्पेसेस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी स्पेसेस इंक्रीज, क्या कर सकते हो आप, एक काउंटर ले सकते हो अलग से आप, क्या कर सकते हो आप, एक काउंटर ले सकते हो आप, क्या काउंटर ले सकते हो आप, अलग से काउंटर लिखो ना कुछ स्पेस के लिए, क्योंकि एक देखो, एक रो के साथ दो बार तो नहीं चलेगा आपका, एक स्टार्स आपका इंक्रीमेंट हो रहा है और स्पेसेस डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आप एक तो अलग से वेरिएबल ले सकते हो जिसमें काउंटर मेंटेन करो, रो नंबर क्या है, राइट, उसको माइनस माइनस कर सकते हो। सोचो, कुछ अलग वेरिएबल लेके देख सकते हो, देखो इसमें कोई टेस्ट नहीं करना, बस स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, रिड्यूसिंग स्पेसेस देना, कितने स्पेसेस देना है, सोचो ना, फोर, फोर मतलब 4 3 2 1, इसमें क्या चेंज हो, स्पेस किस में से माइनस हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ रोज है लेट्स से 50, 50 में से फर्स्ट रो कितना आपका 1, 50 में से वो माइनस करो ना, 50 में से टोटल नंबर ऑफ रोज है आपका, इसे माइनस करो ना, स्पेस शुड बी, इसमें माइनस करना है आपको स्पेस, टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस रो, कर सकते हैं ऐसे, कर सकते हैं ऐसे, डिक्रीमेंट होना चाहिए आपका, राइट, तो आप यहाँ पर ऐसे लिखो, कब तक चलना चाहिए, परफेक्ट, अरे ये नहीं करना था, स्पेस माइनस, ये स्पेस नहीं देना हमें बाद में, आ गया, क्या किया हमने, बस कंडीशन क्या है, हमने अभी रो का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, रो का वैल्यू 1 2 3 4 5, तो टोटल फर्स्ट रो में कितने स्पेसेस देना है आपको, 50 रोज है, तो मतलब 50 नंबर ऑफ रोज है, तो फर्स्ट रो में कितने स्पेसेस चाहिए, 49,
49 कैसे आएगा, नंबर ऑफ रोज माइनस रो नंबर। सेकेंड रो में कितने आना चाहिए, 48, तो नंबर ऑफ रोज कितना है 50, 50 माइनस 2 48, 50 माइनस 3 50 माइनस, अभी इसका स्पेस देते हैं ट्रायंगल के हिसाब से, अभी इसको ऐसे करोगे तो आप स्पेस आएगा आपको ट्रायंगल। ये देखो ये बन गया आपका ट्रायंगल, स्टार्टिंग में स्पेस और स्टार प्रिंट करने के बाद भी स्पेस, योर ट्रायंगल। ये बन गया आपका ट्रायंगल। अब मुझे ऐसे उल्टा ट्रायंगल प्रिंट करना है, चलो इसके और बेटर तरीके से करते हैं। तो यू लीड सम टाइम, दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब आपको क्या प्रिंट करना है, नंबर ऑफ स्टार्स। आई विल जस्ट रिमूव एवरीथिंग। आपको क्या करना है, 5 स्टार, ये प्रिंट करो, लेफ्ट साइड से प्रिंट कर रहे हैं हम, स्पेसेस वगैरह का लॉजिक नहीं। कैसे टैकल करो इस प्रॉब्लम को, पहले तो देखो कि कितने नंबर ऑफ रोज है, यू हैव टोटल नंबर ऑफ रोज, इट्स इंट नंबर ऑफ रोज, तो 5। अभी आप ऐसे जा सकते हो 1 to 5 भी चला सकते हो, 5 to 1 भी चला सकते हो, यू कैन रन द फॉर लूप फ्रॉम 1 to 5 also और 5 to 1 also। तो row can start from 5 and row should be greater than or equal to 1, row minus minus, ऐसे चला सकते हो। कितने टाइम चलेगा फॉर लूप, हाउ मेनी टाइम्स दिस फॉर लूप विल रन, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, सिंपल। दिस लूप विल रन फॉर 5 टाइम्स, दिस लूप विल run 5 times, initially 5, then row minus minus, row minus minus, 5 4 3 2 1, and finally it will be 0, 0 is greater than or equal to 1, 0 greater than or equal to 1 क्या हुआ, false, that is end of your loop। तो कितने टाइम चलेगा लूप, 5 times। now how many stars you want to print, how many stars you want to print, या columns बोल सकते हो आप, कितने स्टार्स प्रिंट करना है आपको, इक्वल टू रो नंबर बोल सकते हैं, रो होगा 5 तो 5 स्टार्स, रो माइनस माइनस 4 स्टार, रो माइनस माइनस 3 स्टार, रो माइनस माइनस 2 स्टार, रो माइनस माइनस 1 स्टार, सिंपल, हो गया आपका काम। हाँ, फिर आपका न्यू लाइन, 5 स्टार्स, 4 स्टार्स, 3 स्टार, 2 स्टार, रो का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, रो वाज इनिशियली 5 तो 5 टाइम्स इंटरनल फॉर लूप इन रन, रो माइनस माइनस, अरे रो 1 से 5 चालू करो या 5 से 1 चालू करो, वन एंड द सेम थिंग, गिनती 5 4 3 2 1 करो या 1 2 3 4 5, कितने बार कर रहे हो आप, तो फर्स्ट रो में कितने बार लूप चलेगा ये वाला इंटरनल फॉर लूप, 5 टाइम्स, सेकेंड टाइम 4 टाइम्स, 3 टाइम्स 2, दैट्स इट। नाउ व्हाट आई वांट लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, फेसेस,
ऐसे कुछ करना है। तो फर्स्ट लाइन में 4 5 4 3 2 1 कुछ चाहिए। कैसे करोगे? ये वाला ऐसे। पहले आपने क्या किया था? इस साइड से स्पेसेस दिए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? अभी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कोई स्पेस नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड कोई स्पेस नहीं है, तो आई वांट अ स्पेस, आई वांट अ स्पेस। एग्जांपल 5 स्टार प्रिंट लाइक दिस। इनिशियल में देखो अभी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ स्टार्स आर सिंपल, नंबर ऑफ रोज आर आल्सो सेम। आपको बस क्या चेंज करना है, क्या करना है आपको? स्पेसेस कितना ऐड करना है आपको? स्पेस यहाँ पर आपको ऐड करना है बस। कितनी बार चलना चाहिए लूप आपका? स्पेसेस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट? स्पेसेस आर इंक्रीजिंग। कितने सारे स्पेसेस हो रहे हैं? हर एक लाइन में सेम स्पेसेस है या डिफरेंट है? सेम नंबर ऑफ स्पेसेस है? नहीं, तो कितना होना चाहिए फिर? नंबर ऑफ रोज माइनस आई, नंबर ऑफ रोज माइनस रो। कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ रोज कितना है मेरा? 5। 5 में से 5 गया फर्स्ट टाइम, 0। फर्स्ट टाइम में 0 स्पेसेस, सेकेंड टाइम में 1 स्पेस, थर्ड कितने स्पेसेस प्रिंट करना आपके आंखों के सामने? फर्स्ट लाइन में 0 स्पेस, आपने यहाँ पर भी स्पेस दे दी, स्पेस नहीं दी, तो ट्रायंगल बन सिंपल। चलो अभी ये पूरा एक स्टार बनाते हैं, डायमंड। डायमंड मतलब कैसे बनाओगे? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, चलो डायमंड पता है, राइट? ये वाला स्टार, तो पहला वाला स्टार प्रिंट करते हैं, पहला वाला ट्रायंगल प्रिंट करते हैं हम। कैसे करेंगे आप? इट्स 5 बाय 5 करते हैं, 5 बाय 5 int number of rows, this will be last, number of rows equal to 5, int number of rows equal to 5। तो 5 ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे आपको। कितने सारे? ये एक ट्रायंगल, फिर उल्टा ट्रायंगल है। एग्जाम्पल चार, चार, ऐसा कुछ ट्रायंगल, और फिर उसके बाद यू हैव 1 2 3 2 1। पहला आप ये काम करो, ऊपर वाला प्रिंट करो। कैसे प्रिंट करोगे आप? अपर ट्रायंगल 1 से लेके 5 तक स्टार्ट करो, 5 रोज। उसके बाद फिर आपको स्पेसेस देना है स्टार्टिंग में, स्पेसेस है स्टार्टिंग में, राइट? यू राइट फॉर स्पेसेस, स्पेसेस कितना होना चाहिए? इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? तो डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? 5 माइनस रो, एंड स्पेस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड स्पेस माइनस माइनस, ये रो होना चाहिए, राइट? देन उसके बाद अभी स्टार, विल प्रिंट द स्टार। स्टार कितने स्टार्स है? इक्वल टू रो, स्टार प्लस प्लस, स्टार प्रिंट करो यहाँ पर, स्पेस दो, न्यू लाइन, सिंपल।
इससे क्या प्रिंट होगा, अपर वाला ट्रायंगल। ये दोनों में स्पेस आता है ना, स्पेस नहीं देंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इससे क्या हो गया, आपका अपर ट्रायंगल हो गया। दिस इज योर अपर ट्रायंगल। लोअर ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम थिंग। हाँ, दो सेपरेट क्यों कर रहे हैं हम, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंड। लोअर ट्रायंगल में क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर आपका फेसेस, लोअर ट्रायंगल के लिए हमने प्रोग्राम बनाया था राइट। यहाँ पर 4 3 2 1, तो स्पेसेस इंक्रीज होंगे और स्टार्स डिक्रीज होंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, स्पेसेस डिक्रीज हो रहे थे और स्टार्स इंक्रीज हो रहे थे। अभी क्या करना है हमको, स्पेसेस इंक्रीज करना है और स्टार्स डिक्रीज करना है, समझे। यहाँ पर अभी स्पेसेस इंक्रीज होंगे और नंबर ऑफ स्टार्स डिक्रीज होंगे। कैसे करोगे आप, कितने सारे रोज चाहिए हमें, हाउ मेनी रोज वी वांट, 5 क्यों चाहिए अभी, 5 तो ऑलरेडी प्रिंट किया था हमने, अभी 4 चाहिए हमें बस, राइट। अभी रो आप ऐसे भी कर सकते, नंबर ऑफ स्टार्स कितना है, 4 3 2 1, आप ऐसे रो को ऐसे स्टार्ट करो ना 4 से, एंड रो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड रो माइनस माइनस, तो 4 3 2 1, इससे नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करना हमारा काम आसान होगा। नंबर ऑफ रोज हो गए। अभी हर एक रो में हमें क्या करना है, स्टार्स लेना है हमें, स्टार कितने प्रिंट करना है हमें, डिक्रीज करना है इंक्रीज करना है, 4 3 2 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टार्स इक्वल टू रो एंड स्टार शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टार माइनस, यहाँ पर प्रिंट करेंगे हम स्टार स्पेस और न्यू लाइन। अब यहाँ पर आपको स्पेसेस भी प्रिंट करना है, यू हैव टू प्रिंट द स्पेसेस। स्पेसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं राइट, कितने स्पेसेस हो रहे हैं, स्पेसेस इंक्रीज हो रहे हैं राइट, 1 2 3 4 5। क्या करोगे आप, कितने सारे स्पेसेस चाहिए आपको, नंबर ऑफ रोज माइनस रो नंबर, कितना चाहिए, क्या लिया था हमने, पैटर्न 11 यही था, स्पेसेस यही तो था ना, यही लॉजिक है आपका। नंबर ऑफ रोज कितना आपका, 4, दैट्स इट। आपका बन गया ना, थोड़ा इधर स्पेस ले सकते हैं हम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम स्पेस दे सकते हैं राइट। सब में देना पड़ेगा हमें, दो स्पेस दे दे। बिगड़ जाएगा। क्लियर, now one last thing we'll do,
अब मुझे प्रिंट करना है टेबल्स 1 to 30। क्या प्रिंट करना है मुझे? टेबल। कैसे प्रिंट करूँ? 1 to 30 या 50 जो भी हो सकता है। टेबल्स में क्या आता है? कितने सारी रोज आएंगे? हाँ, 10 सिंपल। कितने सारे रोज आएंगे? 10। इसको स्टार्ट करो 1 से। कितने सारे रोज आएंगे? 1 का टेबल 10 वैल्यूज, 10 का 2 का टेबल 10 वैल्यूज। अब मुझे 10 रोज हो गए। अभी कितने सारे टेबल्स प्रिंट करना है? एक रो में कितने वैल्यूज प्रिंट करना है? 10 क्यों? कॉल 10 लाइन से 10 लाइन है। एक लाइन में कितने वैल्यूज प्रिंट करना है मुझे? टेबल देखा है आपने कभी? हम्म, ऐसे टेबल होता है राइट? 1 2। कितने रोज हैं आपको? कितने रोज है? 10। तो आपको फॉर लूप, एक फॉर लूप कितने बार चलना चाहिए? 10 टाइम्स। और कॉलम्स कितने हैं आपके? हर एक रो में कितने वैल्यूज प्रिंट करनी है आपको? हर एक रो में कितने वैल्यूज प्रिंट करनी है? अरे 10 रोज हो गए आपके। हर एक रो में कितनी वैल्यूज प्रिंट करनी है आपकी? 30। ये टेबल देख रहे हो यहाँ पर? 1 का टेबल, 2 का टेबल, 15 20 21। तो कितने कितने रहेंगे आपके पास कॉलम? परफेक्ट। कॉलम्स रहेंगे आपके कितने? कितने बार रिपीट करना है आपको? 30। चलो प्रिंट करोगे आप। यू विल प्रिंट एंड देन यू विल टेक द कंट्रोल टू द नेक्स्ट लाइन। एक रो प्रिंट करोगे, फिर उसके बाद लाइन लेके आओगे। तो हर एक लाइन में क्या प्रिंट करना है आपको? देना है आपको। क्या प्रिंट करोगे आप यहाँ? Just for your understanding, can you check this value 12? Now can I say what is the row number? This 1 2 3 4. Row number is 4 and column number is 3. 4 into 3 12 30. What is the column number? 10. And what is the row number is 10 and column number is 3. 10 into 3 30. Example 6. What is the column? What is the column? 3 and row is, sorry, 2. कॉलम इज 2 एंड रो इज 3। 3 इंटू 2 6। बस आपको यहाँ पर एक सिंगल लाइन लिखनी है, रो इंटू कॉलम। इसकी जगह पे हम टैब दे सकते हैं थोड़ा। स्लैश टी मतलब 4 स्पेस, अच्छे से दिखाई भी देगा थोड़ा। आ गए सारे टेबल्स? लर्न करके आना पड़ेगा। हैव अ लुक ऑन दिस प्रोग्राम। कितने सारे रोज प्रिंट करने हैं आपको? 10। और कॉलम्स कितने प्रिंट करने हैं? 30। तो पहला वाला फॉर लूप कहाँ तक चलेगा? ये फॉर लूप, ये किसके लिए? 10 रोज के लिए, 10 लाइन्स के लिए। हर एक लाइन में कितने वैल्यूज प्रिंट करने हैं आपको? 30। तो इसके लिए मैंने एक और फॉर लूप ले लिया, इसे हम बोलोगे कॉलम। कितनी वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए? 1 शुड बी ग्रेटर लाइक 30। तो हर एक
रो में 30 वैल्यूज प्रिंट होगी। कितनी? 30 वैल्यूज। और वैल्यूज प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल दूसरी लाइन पे लेके आना है, इसलिए आपने प्रिंट एलन फॉर लूप के बाहर लिखा है आपने। इंटरनल फॉर लूप सारी वैल्यूज प्रिंट करने के बाद आपको एक न्यू लाइन लेके आना है कंट्रोल, इसलिए आप क्या करते हो, प्रिंट एलन। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस प्रिंट एलन नहीं लिखना, बस प्रिंट लिखना है। और यहाँ पर वैल्यू लिखना है क्या, रो इनटू कॉलम। ऐसे क्यों किया मैंने? करेक्ट, मैं आपको एक्सेल में समझाता हूँ। वन का टेबल, tables. Now think of this 15. What is the row number? What is the column number? 3. Row into column. Think of this 24. What is the column number? 3. Row number 8 into 3, 24. Think of, let's say, 10. 10 also. You can take example of 10 also. 30. What is the row number? Column number 5. 6 into 5, 30. 35. Row number is 7. Column number, समझे क्यों किया मैंने रो इंटू कॉलम? टेकिंग एग्जांपल ऑफ 48. रो नंबर 8, कॉलम नंबर 6। हमने क्या किया, हर एक वैल्यू ऐसे ही मिलेगी आपको, कोई भी वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, रो इंटू कॉलम। दैट्स इट। ठीक, परफेक्ट।